Hello everyone. Today we will start the new topic differential equation. And in differential equation, first we will discuss the differential equation of first order and first degree. फर्स्ट फंक्शन विच कम्स इन अवर माइंड, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट. तो हमने फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा था, वो था dy/dx. दिस इज f डैश x. ऐसे जो हम सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ा था तो वो था हमारा d2y/dx². दिस इज f डबल डैश x. ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगी दैट इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. Also mention a differential equation is an equation which involves independent and dependent variable and the derivative of the independent variables. That means differential equation is an equation in which involve the independent and dependent variable and the derivative of the dependent variable. जैसे हमने एग्जांपल दिया था dy/dx is equal to 3x² plus 4x plus 1. y dependent, x is independent. This is the first derivative, whatever be the equation. Second one is d2y/dx². This plus 9x is equal to 0. This is also my differential equation. dqy/dx is 4x² times d2y/dx. This is my third, and x² times d2y/dx² की power 3 plus y times dy/dx की power 5 plus y square is 0. This is my fourth. Order and degree of the differential equation. सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बाद हम डिग्री की बात करेंगे. The order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation. Order किसी differential equation का क्या है? The order of the highest order derivative involved in a differential equation. जो highest order derivative का order होगा, this is the order of that differential equation. Look at here. I will mention dy/dx is equal to 10x plus x. What is the derivative? Only first derivative. That's why order is 1. d2y/dx² plus 5 times dy/dx dt की power 3 is equal to 10 times sin 80. What is the highest derivative? This is nothing but this is the dy/dt की power 3. This is means the first derivative multiply by 3 times. But this is my d2y/dt². This is nothing but the second derivative. That's why the order of this equation is 2. dqy/dx की whole power 2 plus 3 times d2y/dx² into dy/dx plus x² times dy/dx की power 4 is 0. Here the highest order derivative is 3. That's why order is 3. Clear? Now we will move to the degree. The degree of the differential equation is the degree of the highest order derivative present in one. Highest order derivative की जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी? डिग्री होगी. जैसे dy/dx is equal to x² minus 1. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? इसकी पावर कितनी है? 1. तो डिग्री होगी हमारी क्या? 1. y इंटू dy/dx is equal to √x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर. देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा 1 ही है और इसकी पावर कितनी है? 2. तो डिग्री 2 है, लेकिन इसके हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा. यहाँ ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है. यहाँ ऑर्डर 1, डिग्री 2. इसकी बात करें y माइनस एक्स टाइम d2y/dx² की पावर 3 इक्वल टू k टाइम्स k इंटू 1 प्लस dy/dx की होल पावर 4. देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था? d2y/dx² की पावर कितनी है? 3. दैट्स व्हाई डिग्री इज 3. ठीक है. ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 2 होगा. क्लियर? अब we will move to the differential equation of first order and first degree. The differential equation of first order, the differential equation of first degree and first order can be written in the form m plus n into dy/dx is equal to 0 or m dx plus n dy is equal to 0, where m and n are some function of x and y or constant. Now we will how to solve these equation. तो first one is the method of separation of variable. अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में अलग अलग केस हैं. व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. मेथड ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि वेरिएबल को सेपरेट करके हम अलग अलग इंटीग्रेट करें. इसका मतलब x वाला x की तरफ हो, y वाला y की तरफ हो. जैसे dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इस dx को मैं इधर ले जाऊं तो dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x dx. इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड से. इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x dx प्लस c. यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx प्लस c. ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा. जैसे सॉल्व
dy ओवर dx इज इक्वल टू 5x प्लस 9। अब देखिए dy इज इक्वल टू 5x प्लस 9 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 5x प्लस 9 dx, यानी 5x dx प्लस 9 टाइम्स इंटीग्रल dx। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x प्लस c। तो 2 इधर आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2c। तो 2y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस c1, यानी c1 इज इक्वल टू 2c। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 टाइम्स x की पावर 5 माइनस 4। तो dy ओवर dx कितना है, 6 टाइम्स x की पावर 5 माइनस 4। तो dy कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स x की पावर 5 माइनस 4 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 6 टाइम्स x की पावर 5 माइनस 4 dx। तो y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 5 का करेंगे तो x की पावर 6 बाई 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस c। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 माइनस 4x प्लस c। अब हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी विल पुट इन द गिवन इक्वेशन। तो y कितना है 2, x की जगह 0 रखोगे तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगी आपकी 2 होगी, और c की वैल्यू इसमें रख दो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाए, x की पावर 6 माइनस 4x प्लस 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, when the differential equation is of the form dy over dx is equal to f1x into f2y, then we write dy over f2y is equal to function of x into dx, integrating both sides। तो integral dy over f2y is integral f1x dx plus c, where c is any arbitrary constant। solve the differential equation dy over dx is equal to e की power x plus y plus e की power y into x square। अब dy over dx is equal to e की power y हमने कॉमन लिया, e की power x plus x square। देखो ये पहले वाले तरीके का है, इसको हम इधर ले जाएं, dy ओवर y इक्वल टू e की पावर y, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर y जब ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस y dy हो जाएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस टाइम्स e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो e की पावर x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3 टाइम्स ई की पावर माइनस वाई प्लस 3c 0, और 3 टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3 टाइम्स ई की पावर माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो e की पावर माइनस वाई कॉमन लो तो dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रल e की पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx ऑन इंटीग्रेटिंग e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस c1। आई थिंक ये दो मेथड आपको क्लियर हुए होंगे। Thank you so much.